Assalamu alaikum. How are you? Welcome to all of you in another video lecture of Gohar Science Book 4. So students, according to scheme of study of Gohar Science Book 4, today's video lecture will help you in understanding of lecture of week 2. With the help of this video lecture, you can understand different tasks and assignments and lectures of week 2. So for today's lecture, you have to open page number 11, 12 and 13 of Gohar Science Book 4. So students, in today's lecture, our topic is different parts of body, different body parts of animals. क्या है जी हमारा टॉपिक? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल्स. स्टूडेंट्स, ये जो एक एनिमल है, कोई भी एनिमल अगर हम बात करें, काऊ की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो स्टूडेंट्स इनको सरवाइव करने के लिए बहुत सारे काम करना होते हैं. लाइक अगर कोई एनिमल जिंदा है तो वो क्या क्या करता है? उसे खाना भी खाना होता है, उसे मूव भी करना होता है, उसे अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल भी करना होता है, उसे सांस भी लेना होता है. तो स्टूडेंट्स, ये जो काम है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स करते हैं. जैसे कि सांस लेना किसी एक पार्ट का काम है, खाना खाना और उसको डाइजेस्ट करना किसी एक पार्ट का काम है, खाना खाना फिर उसको डाइजेस्ट करना फिर उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो हर एक काम करते हैं. पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, अपने इर्द गिर्द माहौल को ऑब्जर्व करना, देखना, ये किसी और बॉडी पार्ट का काम है. तो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ रीडिंग हम इस चीज को समझेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं और किस बॉडी पार्ट का क्या काम होता है. सो आर यू रेडी? फाइन. सो जल्दी से ओपन करें पेज नंबर 11 ऑफ गौहर बुक 4, गौहर साइंस बुक 4. Heading is animal parts. There are many different parts in animal's body. Each part has a set of jobs to keep the animal alive. First point is teeth. Animals use teeth to break down the food. The shape of an animal's teeth tells what kind of food it eats. Next, page number 12. Some animals have wide and flat teeth for chewing grass or leaves. Some animals have long pointed and sharp teeth for cutting up meat. Some animals have a mixture of sharp and flat teeth. Next point is bones. Many animals have bony skeleton. Bones are hard and stiff. Bone supports the body. Bones shape the body. Bones protect the inner parts of body. Muscles. Animal bones cannot move on their own. Muscles help them to move. Muscles are thick, stretchy bands that are attached to the bones. They contract and relax to move the body parts. Do you know? Muscles often work in pairs. When one muscle contracts to pull on the bone, its partner muscle relaxes. Next point is brain. The brain is control center of animal's body. Our speech, feeling, movement, sleep, and even balance all are in control of our brain. Our brain is protected in the skull. Lungs. Lungs help in exchange of gases like oxygen and carbon dioxide. Our body uses oxygen to get energy. Heart. The heart acts like a pump. It pumps the blood that circulates throughout the body. The blood carries oxygen and food to all parts of body. Stomach. Stomach is a bag-like part of the body. It helps to digest food in the bodies of animals. Some animals have small and some have large stomachs.
सो स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स पार्ट्स हैं उसमें हमने बहुत से पार्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया टीथ को, जिसमें हमने डिस्कस किया बोन्स को, जिसमें हमने डिस्कस किया मसल्स, एंड देन हमने डिस्कस किया ब्रेन, उसके बाद हमने डिस्कस किया लंग्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया स्टमक को। तो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, पार्टिकुलरली एनिमल्स की जो हम बात करते हैं, उनके काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो एनिमल्स की बॉडी में होते हैं, जो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने में उन्हें हेल्प करते हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स मिलके ही किसी भी एनिमल को जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। जैसे कि टीथ है, टीथ का क्या काम होता है स्टूडेंट्स, कि जो भी एनिमल खाना खाता है तो टीथ के जरिए वो उसको क्रश करता है, क्योंकि जो खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना है, हमारे बॉडी के अंदर जाना है, वो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में उसे होना चाहिए। तो जो हम खाना खाते हैं, एक बाइट लेते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी होती है, तो अब वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे स्टमक में जा सके, इसके लिए पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होना चाहिए। तो वो हम अपने दांतों के जरिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनके जो टीथ हैं वो एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके टीथ फ्लैट होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके टीथ पॉइंटेड होते हैं, नोकदार होते हैं, तेज होते हैं, शार्प होते हैं, और कुछ शायद ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके जो टीथ हैं वो मिक्स होते हैं, उसमें पॉइंटेड यानी शार्प टीथ भी होते हैं, फ्लैट टीथ भी होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो फ्लैट टीथ है उनका काम कुछ और है, और जो पॉइंटेड टीथ है उनका काम कुछ और है। जैसे कि जो फ्लैट टीथ है, ये ग्रास टाइप जैसे वेजिटेबल्स हैं, इनको क्रश करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो पॉइंटेड टीथ है, ये उन एनिमल्स में होते हैं जो गोश्त खाते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंटेड टीथ की मदद से वो एनिमल्स जो हैं वो गोश्त का जो टुकड़ा है उसको काट सकते हैं, अदरवाइज उनके लिए खासा मुश्किल होगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स जो दोनों तरह का खाना खाते हैं, यानी गोश्त भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं, उनके जो टीथ हैं वो मिक्स होते हैं, यानी दोनों तरह के, फ्लैट भी उसमें टीथ होते हैं और पॉइंटेड भी, जैसे कि ह्यूमन है। तो ह्यूमन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो ह्यूमन है उसके अंदर दोनों तरह के टीथ होते हैं। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद है बोन्स। बोन्स क्या है, कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो एनिमल्स का, वो बोन्स की मदद से ही मेंटेन होता है। बोन्स जो होती हैं, जो एनिमल की जो शेप है उसको मेंटेन करती है। बोन्स जो हैं वो बॉडी को सपोर्ट करती हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं, वो बोन्स की मदद से ही सेफ रहते हैं। लेकिन जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें, तो हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन किसकी वजह से सेफ है, स्कल की मदद से। स्कल क्या है, ये बोन्स हैं, बोन्स हैं जिन्होंने कवर किया है ब्रेन को, जिसकी वजह से ब्रेन को किसी तरह की चोट नहीं लगती। इस तरह अगर हम देखें हार्ट है, तो हार्ट है, लंग्स हैं, ये सारे हमारी रिब्स, जो हमारी पसलियों की जो पसलियां हैं, यानी जो चेस्ट की जो बोन्स हैं, उनकी मदद से ये महफूज रहते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मसल्स। सो स्टूडेंट्स, जो मसल्स हैं, ये मसल्स हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। बोन्स जो है वो हमें सपोर्ट तो करती हैं, लेकिन जो मूवमेंट में बोन्स को भी हेल्प चाहिए किनकी, मसल्स की। और मसल्स अमूमन पेयर्स में काम करते हैं, पेयर्स की फॉर्म में। कैसे, अगर मैं आर्म की बात करूं तो इस आर्म में क्या है, दो मसल्स हैं। अगर मैं अपने एल्बो की बात करूं तो एल्बो जो है वो मूव करेगी दो मसल्स की मदद से। तो एक मसल जो है वो ऊपर है और दूसरा मसल नीचे। जो मसल्स हैं, ये एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसी वक्त में दूसरा मसल जो है वो रिलैक्स करेगा, तो जो मेरी बाजू है वो इस तरह मुड़ जाएगी। तो अगर मुझे बाजू को सीधा करना तो क्या होगा, ये जो नीचे मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ऊपर वाले मसल्स जो हैं ये रिलैक्स करेंगे, तब ये बाजू क्या है, सीधी हो जाएगी। तो इसी तरह इन दोनों तरह के जो मसल्स हैं, इनकी मदद से मेरी जो आर्म है इसकी मूवमेंट होती है। तो बाकी भी पूरी बॉडी के अंदर जो मसल्स की मदद से मूवमेंट होती है स्टूडेंट्स, वो अमूमन इसी तरह से होती है। मसल्स के बाद स्टूडेंट्स जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो ब्रेन। तो ब्रेन क्या है, ब्रेन होता है हमारे स्कल में, स्कल की मदद से ये प्रोटेक्टेड रहता है। और ब्रेन का क्या काम होता है स्टूडेंट्स, ब्रेन का काम होता है पूरी बॉडी को कंट्रोल करना।
बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, जो भी हम चीज फील करते हैं, हमने क्या बोलना है, इवन हमारा बैलेंस को भी हमारा ब्रेन ही मेंटेन करता है। तो बेसिकली ये कंट्रोल सेंटर है हमारी पूरी बॉडी का। तो अगर ब्रेन जो है वो प्रॉपर्ली काम ना कर रहा हो तो हमारी पूरी बॉडी जो है उसका जो कंट्रोल है वो नहीं रहेगा और हमारी पूरी बॉडी भी सही से काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लंग्स क्या है, हमारे चेस्ट में होते हैं और लंग्स का काम होता है गैसेस का एक्सचेंज करना। गैसेस को एक्सचेंज करना कैसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी गैसेस हमारी बॉडी में पैदा होती है जो हमारे लिए सही नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ ऐसी गैसेस होती है जो हमारी बॉडी में नहीं है, हमें एनवायरनमेंट से चाहिए, जैसे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेकर जाना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये लंग्स का काम होता है। और ऑक्सीजन हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे जो काम हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हार्ट, दिल क्या है स्टूडेंट्स, ये एनिमल्स के अंदर होता है, ये पंप का काम करता है। ये किस चीज को पंप करता है स्टूडेंट्स, हमारे अंदर होता है ब्लड जो कि पूरी बॉडी में चाहिए, पूरी बॉडी में होता है। और ब्लड का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को लेकर जाना और फूड को लेकर जाना पूरी बॉडी में। तो उस जो ब्लड की मूवमेंट है उसको कौन पॉसिबल करता है, वो है हार्ट का काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। तो एनिमल्स के अंदर जो हार्ट है वो उनके ब्लड को सर्कुलेट करता है और उसी की मदद से तमाम तर जो पार्ट्स हैं उनमें फूड और उनको ऑक्सीजन जो है वो मिल पाती है। तो स्टूडेंट्स इसको फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एक्टिविटी, कुछ असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी, आपने वो करनी है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस हद तक समझ आई है। तो इसमें स्टूडेंट्स 2 एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है वो पेज नंबर 12 पे है और सेकंड जो एक्टिविटी है वो पेज नंबर 13 पे है। तो पेज नंबर 12 पे जो एक्टिविटी है वो है 1.5। तो उसमें स्टूडेंट्स क्या है, एक टेबल है, जिस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। और वो क्या है कि डिफरेंट जो एक कॉलम के अंदर क्या दिया गया है, जो डिफरेंट टाइप्स हैं टीथ की वो एक कॉलम में दी गई हैं और फिर सेकंड कॉलम है, फिर थर्ड कॉलम है। सेकंड कॉलम में आपने लिखना है कि ये जो पर्टिकुलर टाइप है टीथ की, ये कौन से एनिमल्स में होते हैं ये टीथ, और वो एनिमल्स क्या खाते हैं, ये आपने थर्ड कॉलम में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं और आपने इस तरह इस सारे टेबल को फिल करना है, कंप्लीट करना है। और इसी तरह स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एक्टिविटी है पेज नंबर 13 पे, जो कि एक्टिविटी 1.6 है, आपने क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, उनकी पिक्चर्स दी गई हैं, आपने उन पिक्चर्स के नेम लिखने हैं, उन जो पार्ट्स हैं उनके नेम लिखने हैं। तो ये दोनों एक्टिविटीज स्टूडेंट्स आप बुक पे ही कंप्लीट कर सकते हैं और ये आपने आपके जो टीचर की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और ये सबमिट करनी है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।